The first, what we read is what is electoral politics? Why do we need elections actually? Then the positive and negatives of electoral politics. Then the procedure of conducting an election in a democratic country. एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर प्रोसीजर एंड व्हाट प्रोसीजर वी आर फॉलोइंग इन आवर कंट्री व्हाट प्रोसीजर वी आर फॉलोइंग दैट इज filling up of the voters list, those who are casting their vote. Secondly, those who are contesting, for them the procedure, the filling up of the nomination form, then the way they have to campaign, वो लोग अपनी campaigning कैसे करते हैं, they can use certain slogans if they want to catch up the people, that they do. And then on the day of election, when there is an election, on that particular day, how the election is conducted. Election कैसे conduct होते हैं बच्चे? Conduction हमारा होता है कोई भी स्कूल, नॉर्मली स्कूल्स जो होते हैं उनको ले लिया जाता है एंड देन दे मे टेक एनी गवर्नमेंट ऑफिस, उसको जो है इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बूथ, पोलिंग बूथ, उसको हम बोलते हैं पोलिंग बूथ. देन वहां पर द पीपल दे गो, वहां द officials of all the parties are sitting there and then you have to check up. आपका नाम वहां लिस्ट में होता, जो वोटर्स लिस्ट बना था वो लिस्ट आपका वहां होता है. You can check your name, then you enter into the polling booth. वहां जो रूम्स होते हैं they are divided on the areas, zones के अकॉर्डिंग होता है. लाइक इफ अगर आपका दिलशाद गार्डन है या फिर से विवेक विहार है, तो जो आपका विवेक विहार में भी आपका जो ब्लॉक होगा, से यू आर लिविंग इन बी ब्लॉक, तो उसके लिए 2-3 कमरे दे देते हैं. यू एंटर इनटू दैट एंड देन यू कैन गो. पहले क्या होता था, यू हैड द पोलिंग, आपका जो है पेपर होता था जिसको हम बोलते थे बैलेट पेपर. That will contain the name of the person, the party symbol. But now we are having the EVM, electronic voting machine. The same thing is there. आपके स्क्रीन के ऊपर it looks just like the ATM machine, just like the ATM machine. आपके स्क्रीन पर वो नाम होते हैं and you have to just press the button. And once you come back, you will be given एक इंक होता है, that is आपका परमानेंट इंक से आपके यहाँ पे रख दिया, जिससे कि दोबारा कोई जो है द पर्सन डजंट मिस यूज हिज पावर टू कम अगेन एंड कास्ट हिज वोट. एंड देन आफ्टर 2 or 3 days, इट डिपेंड्स द इलेक्शन कब हुआ है, विद इन 2 or 3 days द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड. द इलेक्शन कमीशन के जो लोग होते हैं दे आर देयर टू काउंट. जो आपके एजेंट्स होते हैं ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, उनके एजेंट्स भी सामने बैठे होते हैं. द मीडिया इज देयर. वंस द बॉक्स इज ओपन और द ईवीएम मशीन इज ओपन, दे ट्राई टू फाइंड आउट किस पार्टी को, मतलब कि किस जगह से कौन सा जो इंसान है वो लीड कर रहा. ऑन द एलसीडी स्क्रीन द सेम थिंग इज डिस्प्लेड एंड whoever is the winner, he is declared. Now, apart from this, we also read that election commission जो होता है, before when the people are campaigning, they have to follow certain rules, and these rules are called as model code of conduct. Means to assure कोई rigging malpractices नहीं होता है. The person is not supposed to bribe, supposed to appeal in the name of caste or religion, should not use the government resources, should not use a place of worship. ऐसे बहुत सारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है they are there, and these conducts are, some of them are static, मतलब परमानेंट है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो
टाइम टू टाइम चेंज भी हो जाते हैं। एंड अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है दैट पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर द इलेक्शंस हैव बीन मैल प्रैक्टिस्ड, then they may even conduct re-election। वो वहां पर re-elections भी करवाते हैं। So these are some of the main points that we need to learn in this chapter। अब जो हमारा लास्ट आता है वो है what is the role of election commission। मतलब ये तो हमने पढ़ा that these are the way that election is conducted। तो who makes that? तो it is because of the election commission। हमारे यहां पर क्या है, 1950 में सुकुमार सेन was the first election commissioner। The very first election commissioner was सुकुमार सेन। ही मतलब कि 1950 में जब हमारा पहला इलेक्शन हुआ, 47 में हम लोगों ने वी गॉट द इंडिपेंडेंस, 2 years वी हैड द टेम्पररी गवर्नमेंट। 50 में व्हेन देयर वाज, मतलब इट वाज अ पीरियड, it was not exactly 50 but it was a period of 3 to 4 months। Then when the election commission was set up, this was set up as an independent body। Now what is the meaning of independent body? इलेक्शन के अंदर, सॉरी फॉर एग्जाम्पल, जो आपका पॉलिटिकल पार्टी है, राइट नाउ बीजेपी इज देयर इन यूनियन गवर्नमेंट। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आम आदमी पार्टी इज रूलिंग। इफ यू आर लिविंग इन उत्तर प्रदेश, आदित्यनाथ यानी कि अगेन बीजेपी इज रूलिंग। सो इफ इलेक्शन कमीशन जो है, इफ इट इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उसको मिसयूज करेगी, लाइक पाकिस्तान में करती थी। इट हैज हैपेंड इन मेनी कंट्रीज कि वो मिसयूज करते हैं, वो इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं हमारे हिसाब से मेक द लॉ। लेकिन इन आवर कंट्री, इन इंडिया, इलेक्शन कमीशन इज अ सेपरेट बॉडी। जब वो रूल्स रेगुलेशंस बनाती है तो दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। उस इलेक्शन कमीशन, उस मतलब कि जो इलेक्शन कमीशन जो रूल्स बनाती है उसे गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है। एंड इलेक्शन कमीशन जो है दैट मेक्स सम लॉ कि गवर्नमेंट उन दिनों में कैसे रखेगी। एंड बिकॉज इलेक्शन कमीशन पूरे साल तो काम नहीं करती है, तो दे मे रिक्वायर, उनको जो है समटाइम्स दे रिक्वायर सम पीपल। तो गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द टीचर्स, द पीपल हु आर वर्किंग इन सच एरियाज, इनको जो है डेप्यूट करती हैं। डेप्यूट का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए उन्हें इलेक्शन कमीशन में काम करना पड़ता है। They will not go to their office, they will not go to their school, they will be working under the election commission, like making the voters list, then आपका transcripting करना, सारे काम वो लोग उस वक्त में करते हैं। एंड अगर इलेक्शन कमीशन को पता लग जाता है कि the person, the people, the government has misused its power, then it can cancel the election in that particular place। उस जगह पर वो इलेक्शन को कैंसिल करके दोबारा से करवा सकते हैं। अभी लास्ट वाला 2000 आई थिंक 19 में व्हेन इट हैपेंड इन बॉम्बे, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो थी उसके अंदर देयर वर प्रॉब्लम्स। सो जब वहां पर द गवर्नमेंट गॉट टू नो, सॉरी द इलेक्शन कमीशन गॉट टू नो दैट रिगिंग हैज बीन डन, वहां पर जो है माल प्रैक्टिस हुआ है, तो then they immediately they cancelled
and again the elections were held in that place, so they can do in that manner. So that is how election commission works. Now let us come to this. Most of these reports, क्या क्या reports आते हैं? Inclusion of false names and exclusion of genuine name. You know, ये मेरे साथ हुआ था. This happened with me. I don't remember, it was I think local government का election था, and उससे पहले वाला जो election हुआ था, जो भी हुआ था, I did not participate in that because I really am telling you, मैं election से मुझे बहुत ही बुरा लगता है. I find that elections are just gimmicks. और मुझे नहीं अच्छा लगा, तो I thought मैं जो हूँ नहीं करूँगी, तो मैंने उस वाले में ना मैंने नहीं किया. Then one of my student, because I'm also teaching social science, so one of my favorite students, he told me कि ma'am, you are a social science teacher, you are teaching us elections, and why did not you cast your vote? I told him that कि भाई मैं जिस मतलब कि उसको करना चाहती हूँ, they are not winning, so I'm not happy. So he said, ma'am, then also you only teach us that every vote counts. मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी, because we must preach what we practice. हमें वही चीज करनी चाहिए जो हम सचमुच में फॉलो करते हैं. ये तो है, मतलब कि दिस इज ट्रू. इन माई लाइफ ऑल्सो, आज मुझे एक 12th का बच्चा था, ही टोल्ड मी दैट मैम आपको मैं एक बात बताऊं. तो ऐसे डीएस बताओ. तो ही सेड मैम मैं ना मैथ्स के पेपर में चीटिंग करूंगा. तो आई टोल्ड दैट डोंट टॉक टू मी, डोंट स्पीक टू मी. मैं अगर अकेले भी बैठूंगी ना तो भी मैं चीटिंग नहीं करूंगी. आई डोंट want that thing to happen with me, so don't talk to me. So he said, no ma'am, आप बुरा मान गए, sorry. So it is reality beta, that if I find that something is not good तो मुझे बड़ा बुरा लगता, but he told me that मैम आप करो. नेक्स्ट टाइम जब मैं वोटिंग हो रहा था, तो मेरा सेंटर पड़ा था दिलशाद गार्डन में, एक पर्टिकुलर स्कूल के अंदर. When I reached there, my name was not there. My husband's name was there, my name was not there. I said कि how it is possible? He said no, your name is not there. और मेरा नाम ही नहीं था, कटा हुआ था. Then I was very disappointed when I came back. Then हमारे पड़ोस में एक और थे. They told me कि उनके भी साथ में ऐसा ही हुआ है, उनके घर में भी किसी एक का नाम नहीं था. So this is very very common that your name may not be there. क्योंकि मैंने एक पहले वाला नहीं दिया था तो उन्होंने यूज कर लिया. उनके एक और के साथ क्या हुआ, when they went to cast their vote, जब वो वोट करने गए तो ऑलरेडी उनकी वोटिंग में उनका नाम लिखा किसी और ने कर दिया था. So such malpractice is very common. Misuse of government facilities and officials by ruling parties, ये तो बहुत कॉमन है. इसके लिए तो नो इलेक्शन कमीशन भी अभी तक कुछ नहीं कर पाया है. मीन्स दे मे यूज द रिसोर्सेज, गवर्नमेंट के लोगों को अपने साथ रख लेंगे, गवर्नमेंट की गाड़ी यूज कर लेंगे, दे मे यूज द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू देम, फोन को यूज कर लिया. एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज. दिस इज अगेन अ शेमफुल इंसिडेंट दैट हैपेंस इन आवर कंट्री. अ शेमफुल. जितने भी आपके all the people, we should not name as per the rules, but all those who are rich businessmen, ये लोग जो हैं अपने शर्तों को मनवाने के लिए, because in business you need lots of help, they give good amount of money when there is campaigning going. इनके खाने का, पीने का, आने का, जाने का, मतलब an excessive amount.
they use it, and when that particular party or the person comes into power, he again helps them out. ये होता है. Intimidation of voters and rigging on the polling day. आपके पेपर में you may be asked to define what is rigging. Rigging का मतलब होता है it is a system जिसके अंदर आप जो हो you may support, मतलब कि fraud and malpractices indulged by a party or candidate to increase its vote. मतलब दूसरे, मैंने जैसे बताया, मेरे नाम पे मतलब किसी के नाम के आगे ऑलरेडी इट वाज रिटन दैट द पर्सन हैज कास्ट हिज वोट. उनको जिसको डालना था उन्होंने डाल दिया. इट इंक्लूड्स stuffing ballot box by a few person using vote of others, recording multiple votes by the same person, and bribing or coercing polling officers to favor a candidate. तो इस तरीके से they may use rigging, and this is also very very common in our country. हमारे यहाँ तो पूरा का पूरा ballot box जो है it is taken. Many of these reports are correct. So how can we do? हमारे यहाँ पर no doubt independent election commission is there. The answers is election commission enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoys. The chief election commissioner is appointed by President of India. This is important. मतलब हमारे यहाँ पर जो CEC है, he is appointed by the President of India. But once he is appointed, एक बार वो appoint हो गए, then he is independent, यानी कि he will make the decisions. and ऐसा नहीं है कि एक ही होता, कभी हमारे यहाँ पर certain times it has been कि one election commissioner has been there, and sometimes there have been 2 or 3 also. फिलहाल के लिए I would request all of you to write in your notebook. Presently, Mr. Sushil Chandra is the election commissioner. I'll also write it in, I'll also give you in the notes. Once he is appointed, he will look into the matter. Last जो elections हैं उनमें क्या problems आई थी, and उसके according जो new rules बनाने he will make. ना ही रूलिंग पार्टी और ना ही कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उनको रिमूव कर सकती है. इलेक्शन कमीशन को रिमूव करने का हमारे यहाँ पर एक ही तरीका होता है कि आपको दोनों हाउसेस में, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों में यू नीड टू मूव इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट का मतलब होता है धोखाधड़ी. और अगर लोकसभा में 2/3 पीपल ने बोला कि हाँ ये धोखेबाज है, राज्यसभा में भी लोगों ने बोला, तभी उनको रिमूव कर सकते हैं, और ऐसे रिमूव नहीं हो सकते. सो इट इज रादर इम्पॉसिबल टू रिमूव. सो इलेक्शन कमीशन क्या करता है? इट ट्राइज टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन अ फ्री मैनर. एज आई सेड, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फॉर्म करते हैं, रीफॉर्म करते हैं, मतलब नए भी बनाते हैं, पुराने में चेंजेस भी लेकर आते हैं. इट ऑर्डर्स द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस. इवन दे मे आस्क सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू बी ट्रांसफर्ड. एज आई सेड, दे आर डिप्यूटेड, बिकॉज इलेक्शन कमीशन में इतने लोग काम नहीं करते हैं, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन को जब जरूरत पड़ती है तो दे टेक द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट. इट हैज गिवन, इन फैक्ट इट ट्राइज टू रेप्रीमैंड द गवर्नमेंट. रेप्रीमैंड मतलब डांट लगाना. अगर गवर्नमेंट ने गलत काम किया है, इफ द पोलिंग हैज नॉट बीन डन, देन द इलेक्शन कमीशन टेक्स पावरफुल स्टेप्स. इनफैक्ट उस इंसान के कैंडिडेचर को भी
खत्म कर दिया जाता है. See, these are some of the headlines. Election Commission issues notification. It tightens the norm. Election Commissioner to visit Gujarat. High Court asks Election Commission on bar criminal neta. Election Commission shoots down in a HM advice on poll reforms. Photo I card not mandatory. ये उन्होंने कुछ जो है रखे हुए. They have been trying. Now, अब तक हमने पढ़ा कि how elections are conducted, what is the role. Now, how do we find कौन जीत गया. हमारे इंडिया का जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट फर्स्ट पोस्ट. दैट इज द सिस्टम वी यूज. मान लो 100 जने हैं, ठीक है. अब 100 लोगों में से 60 लोगों ने जो है दे हैव टू गिव द इलेक्शंस, दे हैव टू कास्ट देयर वोट. मतलब वो लोग 18 साल से बड़े हैं. 40 जो है वो छोटे बच्चे हैं, तो वो दे कैन नॉट. अब 60 जनों को करना था, बट हुआ क्या, ओनली 20 पीपल कास्ट देयर वोट. सिर्फ 20 जनों ने कास्ट किया. क्यों? क्योंकि उनको लगा यार आज तो छुट्टी है, चलो हम घूमने चलते हैं, सैटरडे संडे का हमको डेट मिल गया, चलो. नाउ आउट ऑफ 20 पीपल 14 people voted for A party, 3 people voted for B party and 3 people voted for C party. तो हमारे यहाँ पर 14 जिसको मिला है, whosoever has got 14, that person is the winner. चाहे 60 जनों ने देना था, वोटिंग करनी थी, लेकिन सिर्फ 20 ने दिया, लेकिन मेजॉरिटी जिस इंसान को, जिस पॉलिटिकल पार्टी को गई है, वही विनर होता है. एंड दिस इज काउंटेड, जिसको हम कहते हैं, इसी को जो मैंने कहा ना, आउट ऑफ 60 ओनली 20 पीपल हैड कास्ट देयर वोट, यानी कि 30%. तो उसको हम बोलते हैं टर्न आउट, यानी द एक्चुअल पीपल हु हैड कास्ट देयर वोट. The actual people who had cast their vote. मतलब एक जगह पे 60 जनों ने करना था, लेकिन सिर्फ 20 ने किया, तो that means जितने ने किया 1/3 ने किया, so that is a turnout. आपको पता है जब हमारा इलेक्शन स्टार्ट हुआ था, उस वक्त आपका जो है, मतलब जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त only 35 to 40% people voted. But over the period it has improved. अभी जो लास्ट अभी हुआ था मणिपुर, मतलब उसमें हुआ था शायद मेघालय वगैरह में, अभी जस्ट लास्ट ईयर it was 84%. यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में मतलब कि ज्यादा कम हुआ है, हमारे यहाँ पर ज्यादा हुआ है. हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम और होती है कि जो लोग गरीब होते हैं, इलिटरेट्स होते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, दे नॉर्मली फील कि हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ करेगी, और इसीलिए हमारे यहाँ पर अगर आप वोट को देखोगे ना, द नंबर ऑफ पीपल हु हैव वोटेड, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द रिच एंड पुअर, तो जो पुअर पीपल होते हैं ना वो ज्यादा वोट देते हैं. मतलब अगर मान लो 100 जने पुअर थे और 100 जने रिच थे, तो 100 के 100 पुअर देंगे, लेकिन रिच में सिर्फ 20 जने देंगे. हमारे यहाँ ये होता है, क्योंकि रिच को पता है जो भी आएगा कोई फायदा नहीं है, लेकिन पुअर जो है दे कीप एस्पिरेशंस. बट अगर आप कंट्रीज लाइक यूएस जाओगे, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है बेटा पेपर में, इफ यू गो टू कंट्रीज लाइक यूएस, वहां पे जो गरीब है वो नहीं देते, उन्हें पता है कि दे विल नॉट बी बेनिफिटेड इन एनी वे, इट इज ओनली फॉर द रिच. सो नॉर्मली वहां पर जो रिच पीपल होते हैं दे गिव द वोट्स, बट इन इंडिया इट इज ऑपोजिट. बट पहले, एज आई सेड, the number of voters were very less. Even I told you I did not vote.
But now for the past few years, not only that they are voting, they are also taking participation in the polls. मतलब कोई तो या तो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है या किसी पॉलिटिकल पार्टी का फॉलोवर है, दे आर डूइंग द कैंपेनिंग वगैरह भी करते हैं. सो राइट नाउ दे आर डूइंग इट. अभी तो आजकल तो वैसे भी ये फेसबुक वगैरह के आने के बाद द पीपल आर वेरी एक्टिव. दे ट्राई टू फाइंड आउट कि कैसे लोग जो है, मतलब कि कैसे लोगों को जो है समझाना है दैट दे शुड कैस्ट देयर वोट. अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, वॉलंटियरिंग करते हैं. सो दिस इज हाउ the number of people have increased. Now ये देखो, ये एक पोल आया है. 67 people say yes, voting makes difference. 18% say has no effect and 15% say don't know. And इसीलिए the government, the election commission had introduced nota. और एक और भी है, वो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगी. देयर इज वन मूवी ऑल्सो, अ वेरी फेमस मूवी इन आवर तमिल, दैट इज सरकार. मीन्स अगर, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा जो नाम था दैट वाज नॉट देयर इन द लिस्ट, और मेरे एक जान पहचान के थे, उन्होंने बताया था कि उनके लिस्ट में उनके नाम के आगे किसी ने कर दिया था. दैट इज रॉन्ग. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर किसी ने मेरे नाम पर डमी वोट दिया है तो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जो हो केस डाल सकते हो. एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन कि उस एरिया में दोबारा से इलेक्शन करवाएं. और ये हम में से किसी को नहीं पता था. इवन आई डिड नॉट नो. जब मैंने ये मूवी वॉच किया था तब मुझे पता लगा था. इट्स आर्टिकल 45 कुछ ऐसा है. एंड नोटा, नन ऑफ द अबाउ. यानी कि इफ यू डोंट वांट टू कास्ट योर वोट टू एनीवन, देन आप उस पर डाल सकते हो. हालांकि उसका इतना फायदा नहीं होता है. क्यों? अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नोटा ज्यादा है, मतलब किसी ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं किया है, मतलब मान लो कि 100 वोट थे, 60 लोगों ने नोटा पे दिया है, और उसके बाद 20 वोट्स गए हैं ए पार्टी को, तो उसी को वो वोट चले जाते. तो नोटा मुझे लगता है इट इज नॉट दैट मच इफेक्टिव, बट आई ऑलवेज go and put on nota only. I don't put to any of the political party. Now, once the election is over, the results have come. Normally हमारे यहाँ पर इस बार जो बीजेपी था वो, और उससे पहले कांग्रेस 3 बार हुआ है. नॉर्मली यही होता है कि जो रूलिंग पार्टी होता है वो नॉर्मली हार जाता है, बिकॉज वो पूरे 5 साल कुछ करता नहीं है. The ruling party routinely lose elections in India. In fact, ऐसा ही रहा है. In US, an incumbent, मतलब जो रूलिंग पर्सन है, rarely loses. लेकिन हमारे यहाँ में हमेशा होता है कि वही लॉस करता है. This is because for the past 5 years normally they haven't done anything. दूसरा, जिन्होंने बहुत पैसा खर्च किया होता है, sometimes they even lose the money. Yet इलेक्शन का रिजल्ट जो भी होता है दैट इज एक्सेप्टेड बाय द पीपल. हमारे यहां पर देयर इज नो, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है इट विल नॉट गो फॉर धरना. जैसे कांग्रेस हार गई तो दे एक्सेप्टेड दैट इट इज पीपल्स वर्डिक्ट. जो डिफीटेड पार्टी होती है वो अपनी डिफीट को मान लेती है. मतलब अभी तक तो ऐसा ही रहा है. बट एज आई सेड, हमारे यहाँ पर इलेक्शंस में देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द पास्ट ईयर्स. रिगिंग इज वेरी वेरी कॉमन, and you can say that it is actually a level playing field. What is the meaning of level playing? The condition in which all the political parties and candidates contesting have equal opportunity to appeal for votes. कहने के लिए बोलते हैं, but normally it is not.
कैंडिडेट जिन्होंने बहुत पैसा खर्च किया होता है, समटाइम्स दे मे नॉट विन द इलेक्शन, एंड नॉर्मली इट होता ही ऐसा है। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी आप बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज हम नाम लिखते हैं, दे स्पेंड अ गुड अमाउंट, बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज। लेकिन उनको फायदा क्या मिलता है? मान लो कि एक पार्टी जो है, इट डिड नॉट कम टू पावर, बट इट कैन हैव द पावर ऑफ ऑपोजिशन, और अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है, देन दे कैन फॉर्म द अलायंस, वो दूसरी छोटी पार्टीज को साथ में रखकर दे कैन फ्रेम द गवर्नमेंट। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, द पीपल विथ क्रिमिनल कनेक्शंस हैव गॉट द टिकट्स। हमारे यहां पर है, not to name, but there are notorious criminals who are in the politics. Some families, इसको हम कहते हैं डायनास्टिक सक्सेशन, ये सेम आपका 10th में भी है। इट इज कॉल्ड एज डायनास्टिक सक्सेशन, यानी कि सिर्फ अपनी फैमिली या फिर रिलेटिव्स को ही वो लोग टिकट्स देते हैं, मतलब टू कंटेस्ट द इलेक्शन। दे विल नॉट, अगर मान लो कि मेरी पार्टी है, माई डॉटर, माई सन इन लॉ, माई ब्रदर इन लॉ, मतलब रिलेटिव्स हैं, आप लोग भी हो, बट मैं क्या करूंगी, टू कीप द कंट्रोल, आई विल गिव द परमिशन पार्टी टिकट टू माई फैमिली। ये बहुत होता है वेरी ऑफन। जो मैं आपको बता रही थी, इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स, क्योंकि किसी को भी देख लो, द रूलिंग पार्टी विल ऑलवेज एलिगेट द ऑपोजिशन, द ऑपोजिशन विल ऑलवेज एलिगेट द रूलिंग पार्टी। वो कहते हैं हम ये करेंगे, वो कहते हैं हम ये करेंगे, करता कोई कुछ नहीं। एटलीस्ट पर्सनली आई हैव नेवर फेल्ट कि यस, ये जो हुआ था, दिस इज फॉर मी, मीन्स एज अ टीचर, I'm not talking about as a mother, as a teacher. I see lakhs of students who are very intelligent, very intelligent, 99%, 99.9% लाते हैं, then they appear for the engineering colleges or for the medical, और उसके बाद गवर्नमेंट ने बोल तो दिया है कि नीट है, लेकिन आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर सीट्स ही नहीं है। And if you want to become a doctor, you have to pay 1 crore rupees. 1 crore. और ये सिर्फ आप एक MBBS बन रहे हो. You are not going to become a qualified doctor. अब आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तो आपको एटलीस्ट 2 to 3 crores और खर्च करने पड़ेंगे. Where the government has opened the colleges for the medical. Engineering में आज की डेट पर, according to NASSCOM, 94% engineers are not eligible for any job, क्योंकि उनको प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा कुछ पढ़ाते ही नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स कहाँ हैं? जितने सीट्स हैं उसके अंदर रिजर्वेशन डाल देते हैं। रिजर्वेशन भी सिर्फ एक गिमिक होता है, क्योंकि ये सीट्स आपके पीछे से बिक जाते हैं। एंड नॉर्मली द पीपल हु आर, मैंने तो अपने उसके अंदर किसी बच्चे को नहीं देखा जो IIT की इतनी प्रिपरेशन करने के बाद द चाइल्ड इज गेटिंग इनटू IIT, द चाइल्ड इज गेटिंग इनटू एम्स, द चाइल्ड इज गेटिंग इनटू गवर्नमेंट कॉलेजेस। और प्राइवेट कॉलेजेस के फीस, एक बच्चा जो पूरे जिंदगी 12 years वो 99% लाया, द चाइल्ड क्रैक नीट एंड देन द चाइल्ड इज नॉट गेटिंग इनटू अ गवर्नमेंट कॉलेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना तो किसी ने भी मतलब कि इस फील्ड को नहीं लिया है। दे से दे हैव ओपन, बट आई डोंट फाइंड दैट। तो दिस इज वेरी कॉमन। महंगाई तब भी थी, अब भी है। कभी टमाटर ज्यादा हो जाते हैं तो कभी पेट्रोल हो जाता है। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज। अब मैंने आपको बताया था कि इफ यू वांट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, आपको जरूरी नहीं है दैट यू हैव टू बी द पार्टी मेंबर ऑफ एनी पार्टी। आपको जरूरी नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली करो।
बट इफ यू लॉस, जो सबसे ज्यादा होता है, देन जितना आपने अपने कैंपेनिंग पे खर्चा किया, जितना आपने अपने नॉमिनेशन के लिए पैसा लगाया, सब कुछ खत्म हो जाता है. सो दे आर इनटू ट्रबल. There are more, no, these are deeper issues. The government has done, Supreme Court has, changed many things. Yet अभी भी जो है changes की जरूरत है. जो पॉलिसीज हमारी बनती हैं उनमें हमारे को चेंजेस लाने की जरूरत है. जो हमारे काउंटिंग होता है उनमें वी नीड टू, इनफैक्ट देयर वाज अ कैंपेनिंग दैट जो हमारे होता है कि 40% पीपल आर वोटिंग फॉर एन इलेक्शन, एंड 40% में से जितने लोग जीते हैं उनको हम मतलब कि वी कॉल देम एज अ विनर. दैट शुड नॉट बी देयर. देयर शुड बी सम मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड, ऐसा करके भी बोला है. बट स्टिल दे आर ऑल इन द पाइपलाइन. अभी इन सब चीजों को मतलब कि लागू नहीं किया गया है. दीज आर कॉल्ड एज चैलेंजेस टू मतलब कि इंडिपेंडेंट सॉरी फेयर election, and this again comes in the paper for 5 marks. And write it down, this question is मतलब ये जो question आता है ये 5 marks का, ये श्योर एंड शॉर्ट में आता है. ये आता है आपका इन चॉइस कि इलेक्शन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, एंड उसके चॉइस में आ जाता है व्हाट आर द challenges for free and fair elections in our country. So this is the chapter that is आपका electoral politics.